حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ اے ذبیح اللہ، بی خلیل اللہ، سی کلیم اللہ، ڈی روح اللہ۔ بی خلیل اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا سچا دوست یعنی خلیل فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ اے 110، بی 112، سی 114، ڈی 116۔ سی 114۔ قرآن مجید میں کل 114 صورتیں ہیں، جن میں سے 86 مکی اور 28 مدنی صورتیں ہیں۔ وضو کے کل کتنے فرائض ہیں؟ اے 3، بی 4، سی 5، ڈی 6۔ وضو کے 4 فرائض ہیں: چہرہ دھونا، کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ اسلامی کیلنڈر ہجری سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ اے رمضان، بی رجب، سی محرم، ڈی ذوالحجہ۔ سی محرم۔ اسلامی یعنی ہجری سال کا آغاز ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام ذوالحجہ پر ہوتا ہے۔ حضور اکرم درود و سلام آپ پر اور آپ کی آل پر کی والدہ ماجدہ کا نام مبارک کیا تھا؟ اے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، بی حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا، سی حضرت حلیمہ سلام اللہ علیہا، ڈی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ بی حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا۔ رسول اللہ درود و سلام آپ پر اور آپ کی آل پر کے والد کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا تھا۔ اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ راشد کون ہیں؟ اے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، بی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ڈی حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم۔ سی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم درود و سلام آپ پر اور آپ کی آل پر کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے اجماع سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ منتخب ہوئے۔ شب قدر کس مبارک مہینے میں آتی ہے؟ اے شعبان، بی رمضان، سی رجب، ڈی شوال۔ بی رمضان۔ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں 21، 23، 25، 27، 29 میں سے ایک نہایت فضیلت والی رات ہے۔ خانہ کعبہ دنیا کے کس شہر میں واقع ہے؟ اے مدینہ منورہ، بی مکہ مکرمہ، سی بیت المقدس، ڈی ریاض۔ بی مکہ مکرمہ۔ خانہ کعبہ سعودی عرب کے مقدس شہر مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے وسط میں واقع ہے، جس کی طرف دنیا بھر کے مسلمان رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا اسلام میں کیا کہلاتا ہے؟ اے فرض، بی صدقہ، سی واجب، ڈی قرض۔ بی صدقہ۔ رسول اللہ درود آپ پر اور آپ کی آل پر نے فرمایا کہ تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی تمہارے لیے صدقہ کا ثواب ہے۔ ارکان اسلام کی مشہور ترتیب کے مطابق کلمہ اور نماز کے بعد تیسرا رکن کون سا ہے؟ اے روزہ، بی زکوٰۃ، سی حج، ڈی جہاد۔ بی زکوٰۃ۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں: توحید و رسالت کی گواہی، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ قرآن مجید کی سب سے طویل لمبی سورت کون سی ہے؟ اے سورہ آل عمران، بی سورہ النساء، سی سورہ البقرہ،
डी सूरह अल माइदा। सी सूरह अल बकरा। सूरह अल बकरा कुरान मजीद की सबसे लंबी सूरत है जिसकी 286 आयात हैं और यह दूसरे पारे के अवाखिर तक जाती है। किस मशहूर गज़वा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिंदाने मुबारक दांत शहीद हुए थे? ए गज़वा बद्र, बी गज़वा उहद, सी गज़वा खंदक, डी गज़वा खैबर। बी गज़वा उहद। गज़वा अहद 3 हिजरी में कुफार के अचानक हमले के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर जख्मी हुआ और दंदाने मुबारक शहीद हुए। मोहतरम नाज़रीन, आधी वीडियो मुकम्मल हो चुकी है। अब तक आपके 12 में से कितने जवाब दुरुस्त हुए? कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर लिखें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अल्लाह ताला के कौन से पैगंबर अलैहिस्सलाम एक बड़ी मछली के पेट में कई दिन महफूज रहे? ए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, बी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, सी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, डी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से मछली ने निगल लिया था, जहां उन्होंने मछली के पेट में मशहूर दुआ ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को सैफ अल्लाह, अल्लाह की तलवार का लक़ब अता फरमाया? ए हज़रत अली करम अल्लाहु वजहुल करीम, बी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु, सी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु, डी हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाहु अन्हु। बी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु की बेमिसाल जंगी महारत और शुजायत पर इन्हें अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार का खिताब दिया। सहीह बुखारी की रवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो ए बहुत ज्यादा मालदार हो, बी कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए, सी सबसे ज्यादा जिस्मानी ताकत रखता हो, डी सबसे ज्यादा सफर करे। कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। हदीस पाक के अल्फाज हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, यानी तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान की तालीम हासिल करे और आगे फैलाए। तहवील क़िबला, बैतुल मुक़द्दिस से काबा की तरफ रुख बदलने का हुक्म किस हिजरी साल में हुआ? ए 1 हिजरी, बी 2 हिजरी, सी 3 हिजरी, डी 4 हिजरी। बी 2 हिजरी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना हिजरत के तकरीबन 16 या 17 माह बाद शाबान 2 हिजरी में नमाज के दौरान ही किबला तब्दील करने का इलाही हुक्म आया। बारिश बरसाने और मखलूक तक रिज़्क पहुंचाने के इंतजाम पर कौन से मुकर्रब फरिश्ते मामूर हैं? ए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, डी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम इस्लामी अकीदे के मुताबिक हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम कायनात में बारिश, नबातात और अल्लाह की मखलूक़ात तक रिज़्क की तक़सीम के उमूर पर मामूर हैं। जन्नत के उस मखसूस दरवाजे का नाम क्या है जिससे सिर्फ रोज़ादार दाखिल होंगे? ए बाबुल सलाह, बी बाबुल जिहाद, सी बाबुल रियान, डी बाबुल सदका। सी बाबुल रियान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसे अर्रय्यान कहा जाता है। क़यामत के दिन उससे सिर्फ रोज़ादार दाखिल होंगे।
और उनके अलावा कोई दाखिल नहीं हो सकेगा। चांदी पर ज़कात फ़र्ज होने का शरई नसाब कितना है? ए 7.5 तौले, बी 52.5 तौले, सी 40 तौले, डी 100 तौले। बी 52.5 तौले। चांदी पर ज़कात का शरई नसाब 5 वक़िया है, जो मौजूदा दौर के वज़न के मुताबिक 52.5 तौले बनता है। अगर इतनी चांदी या उसकी मालियत का माल साल भर मौजूद रहे तो ज़कात वाजिब होती है। सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक मस्जिद में दाखिल होते वक्त पहले कौन सा पांव रखना चाहिए? ए बायां पांव, बी दायां पांव, सी दोनों पांव एक साथ, डी कोई भी पांव रख सकते हैं। बी दायां पांव। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि सुन्नत ये है कि जब तुम मस्जिद में दाखिल हो तो दायां पांव पहले रखो और जब बाहर निकलो तो बायां पांव पहले रखो। कुरान मजीद में वाहिद सहाबी रसूल कौन है जिनका नाम अल्लाह ताला ने सराहत के साथ जिक्र फरमाया है? ए हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु, बी हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु, सी हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, डी हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। बी हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु। सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला ने वाहिद सहाबी रसूल हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम मुबारक सराहित फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुन मिन्हा वतरन के साथ जिक्र फरमाया है। तारीख़ इस्लाम का मशहूर अमन मुआहदा सुलह हदीबिया किस हिजरी साल में हुआ था? ए 5 हिजरी, बी 6 हिजरी, सी 7 हिजरी, डी 8 हिजरी। बी 6 हिजरी। सुलह हुदैबिया ज़ुल्क़ादा 6 हिजरी में मुसलमानों और कुरैश मक्का के दरमियान 10 साला अमन के लिए हुआ था, जिसे कुरान ने फ़तह मुबीन करार दिया है। सहाबा कराम में से किस खलीफा ने सरकारी सतह पर कुरान मजीद के एक मुतफ़िक़ा लुगत पर नुस्खे तैयार करवाकर मुख्तलिफ शोबों में भेजे? ए हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, बी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, सी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, डी हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम। सी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने उम्मत को एक क़िराअत और लुगत कुरैश पर जमा करने के लिए हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर के जमाशुदा कुरान से नक़ूल तैयार करवाएं और अहम मराकिज़ में भेजें। इसीलिए आपको जामिउल कुरान भी कहा जाता है। हज़रत सुलाइमान अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम कौन से मशहूर पैगंबर थे? ए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, डी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। ए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। हज़रत सुलाइमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल क़दर नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे और इन्हें अपने वालिद की नबूवत और अजीम सल्तनत दोनों का वारिस बनाया गया। हज या उम्रा के दौरान सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान चक्कर लगाने के अमल को शरई इस्तिलाह में क्या कहते हैं? ए तवाफ, बी रमी, सी सई, डी इहराम। सी सई। सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान मखसूस अंदाज में 7 चक्कर लगाना सही कहलाता है। ये हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और हज व उम्रा का वाजिब रुकन है। माशा अल्लाह 25 सवालात का मुकाबला मुकम्मल हो चुका है। अब ईमानदारी से अपना फाइनल स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपके कितने जवाबात दुरुस्त रहे। मज़ीद ऐसी मालूमाती और ईमान अफरोज़ वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल हाफिज़ मुअज़्ज़म फैज़ को सब्सक्राइब करें। जज़ाकमुल्लाह खैरा। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह।